Now to the Delhi-Haryana highway, where a large number of Haryana farmers are staging protests against the minimum support price offered for sunflower seeds. They're raising other demands in Haryana's Kurukshetra area. As we said, much of these developments are taking place on the national highway. This is the second time in just 1 week that you've seen farmers raise their protests in this area. Now, the farmers' unions are demanding that the government hold talks. They're saying otherwise they're going to continue their protests. The Haryana BJP Legislative Party meeting will be held in Gurugram today to discuss what the farmers' demands are. Remember, Haryana is a BJP-ruled state and its chief minister, along with the state president, is going to be present at these meetings. Now, the Haryana government published an advertisement in newspapers in which it claimed that the truth on the NSP on sunflower seeds was being questioned. We'll take you into a deeper dive around sunflower seeds, the questions and demands that farmers have and what the government has offered so far in just a second. First, take a look at what my colleague Akash brings us. This is a ground report. Take a look. I'm standing at NH44 and behind me is a long queue of trucks. These trucks were basically trying to pass by from this highway. However, we have farmers' protest going on just 1 kilometer away from this particular point, and that is the reason why these trucks are unable to pass by, in fact, complete their journey. I'll ask my camera person Arpit Seth to show you the visuals. Till the point you can see, you'll see the trucks standing, waiting for their turn, because as of now, not only they are trying to complete their journey, but are also looking for some sort of alternate route. कितने बजे से खड़े हैं? क्या नाम है? ब्रिजेश यादव। ब्रिजेश जी, कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़। चंडीगढ़ जा रहे हैं। क्या है ट्रक में? गुडियर टायर। अच्छा, और कब तक पहुँचना था? आज 4 बजे पहुँच जाता, रात 10 बजे खड़ा हूँ। अच्छा, कुछ बताया पुलिस वालों ने? कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। कब तक उम्मीद है, कब तक खुलेगा? पता नहीं। कितने बजे से फंसे हुए हैं यहाँ? अरे कल 4 बजे से फंसे हैं। कल 4 बजे से फंसे हुए हैं। जाना किधर है? जाना नंगल पंजाब। नंगल पंजाब। और कोई कुछ बताया पुलिस वालों ने? क्या कुछ कहा? कुछ नहीं, पुलिस वाले क्या ठिकाना, जब कोई मैटर आता है बस आ जाए, कोई बोला नहीं कुछ। कितना लंबा होगा ये जाम? जाम कुल मिला के दिल्ली करीब होता होगा। दिल्ली करीब होता होगा। करनाल तक तो हमने भी देखा। हाँ, ये दिल्ली करीब, पानीपत तो ढांक गया होगा क्योंकि शाम को ही गाड़ियाँ निकलती हैं ज़्यादा। हाँ। तो कुछ नहीं, दिल्ली करीब हो ही गया होगा। अच्छा, आप कहाँ से हैं बाजी? हम सर दिल्ली से हैं। दिल्ली से। और कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जम्मू जाना सर। जम्मू जाना है? हाँ अरे जी आपको सर। तो लंबा जाना है। हाँ जी सर। और कब तक पहुँचना था? पहुंचना था कल ही रात को पहुंचना था। हाँ। अभी इधर ही हैं फंसे हुए कल से। कुछ उम्मीद लग रही है कब तक खुल पाएगा? हमको सर कोई उम्मीद नहीं है। हाँ। All right, we wanted to bring you more voices from the ground in this story. This is what the Bharat Kisan Union national spokesperson Rakesh Tikait has to say about the farmers' ongoing protests. He spoke to us a little while ago. Take a look. जी, आप मुझे बताइए, दोबारा से लग रहा है कि आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं किसान, क्या कारण है? एमएसपी पे आंदोलन तो देश में होगा, बिजली के इशू पर होगा, जमीन अधिग्रहण पर होगा। तो अभी जहाँ जहाँ के इशू चल रहे हैं, लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आप आज यहाँ पर बैठे हैं कुरुक्षेत्र में, इसका क्या? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो मांगे हैं, एमएसपी को लेकर आपने बात कही, एमएसपी को लेकर आप मांग हैं, आपके साथ ही कुछ पुलिस की कस्टडी में उनकी रिहाई को लेकर आपकी मांग थी, अल्टीमेटम भी दिया था। क्या कुछ मौजूदा स्थिति है? अभी क्यों बैठना पड़ रहा है राकेश टिकैत को यहाँ पर? अभी जो सूरजमुखी की एमएसपी है उस पर खरीद नहीं हो रही, और वो रेट वो है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट दिया है, भारत सरकार का रेट है, स्टेट गवर्नमेंट का रेट है। हाँ। उस पर खरीद हो। जो लोग खरीद के आंदोलन में जेल गए हैं उनकी रिहाई हो। ये 2 डिमांड अभी यहाँ की है, हरियाणा की। तो बात हुई है प्रशासन से, आपकी सरकार से कोई बातचीत हुई है? क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को? 3-4 बार की बातचीत लोकल कमेटी से हुई है। हाँ। अभी कुछ समाधान तो नहीं निकला। अभी समाधान नहीं निकला। रात 10 बजे तक का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो अल्टीमेटम या कुछ ऐसा भी आपने कहा था कि? वो कहा था बिल्कुल आपस में। हाँ। कि 10 बजे तक सरकार दे, तो कुछ उनकी तरफ से आया होगा कि नहीं, कुछ पॉजिटिव वो है, लेकिन उसका रिजल्ट आना चाहिए। हाँ। उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया।
तो क्या अब आगे की राह होगी, क्या फिर से कहें कि दिल्ली के बॉर्डरों तक किसान पहुंचेंगे, या क्या कुछ आगे की राह है? अभी उस तरह का तो मूवमेंट अभी नहीं है, उस तरह की ना अभी तैयारी है, लेकिन देश में एमएसपी के सवाल पे बड़ा आंदोलन देश में होगा। ठीक है साहब, अभी देख रहे हैं हम पीछे आपके समर्थक भी हैं और लोग पहुंच भी रहे हैं लगातार। क्या कुछ संख्या बल है, क्या आपने और किसानों से आह्वान किया है कि यहाँ पर पहुंचें? जैसे जैसे जरूरत होगी तो उस हिसाब से लोग आ जाएंगे। हाँ, नहीं, लेकिन NH44 का मामला भी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि हमें तो गाड़ी चलती हुई दिख रही है ना। NH44 का मामला भी लोग उठा रहे हैं कि ये जो पूरा रास्ता ये बंद कर रखा है, आप लोगों ने बंद किया है। हमने तो नहीं बंद करा, पुलिस ने बंद करा, हम तो बंद करते ही नहीं। कोई आदमी खड़ा हो रास्ते में तो बताओ, यहाँ तो जो गाड़ी आती है वो निकल जाती है। अच्छा, हम लोग भी, जैसे मैं आया हूँ दिल्ली से, तो मैं घूम के आया हूँ। नहीं, क्यों आए घूम कर, तो सीधा रास्ता चल रहा है। सीधा रास्ता चल रहा है। क्या आने वाले घंटों में या आने वाले दिनों में आप लोगों की ओर से ऐसा कोई इशारा है कि इस रोड को? ये प्रशासन और सरकार किसानों को बदनाम करने के लिए और पूरी जो एनर्जी उनकी है टीवी चैनल के माध्यम से उस पर ले जाना चाहती है कि किसानों ने रास्ते बंद कर रखे। चैनल ये नहीं दिखाता कि भारत सरकार का जो रेट है उन्होंने रेट डिसाइड करा और स्टेट गवर्नमेंट या उसको भारत सरकार नहीं उसको दे रही। सिर्फ रास्तों को और वो दिखाई देता है, लेकिन जो किसान का रेट है या गन्ना भुगतान है किसान का या दूसरी फसलों के रेट है, जो मक्का है उसके रेट है, वे आधे रेट में किसान अपनी फसल बेच रहा है, वो दिखाई नहीं देता। मैंने आपसे सवाल किया कि आगे का क्या रास्ता है, और उसी सवाल को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाऊं तो क्या कहें कि उस दिशा में आंदोलन बढ़ रहा है ये कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो जेल तक भी जा सकते हैं, या हमने तो इनको कहा भाई रास्ते खोलने के दो ही तरीके हैं।